ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಶಿವ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿಶ್ವ. ಎರಡು ಬಲಿಷ್ಠ ಅನುಭವಸ್ಥ ಆಟಗಾರರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ನಹೀಂ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರೋಚಕ ರೋಮಾಂಚನ ಪ್ರದರ್ಶನದತ್ತ ಆಗಿ ಬರಲಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ದಂಡನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. 4 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಸಾಗಿದ ಚೆಂಡು ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ, 4 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಉಡುಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಹೀಂ, 7 ನಂಬರ್ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮವಸ್ತ್ರಧಾರಿ ಈ ನಹೀಂ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ ದಂಡನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಿವ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ ನೋಡಿ, ಷಡ್ಕ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್ ರವರ ದಂಡನೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 6 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 10. ಓವರಿನ 2 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಹೀಂ. ಉತ್ತಮವಾದ ಓಡಾಟ, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. ಒಂಟಿ ಸುಲಭ. ಈ ಒಂಟಿ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ 11 ಅಂಕದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓವರಿನ ಚತುರ್ಥ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ವಿಶ್ವರವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಗೈದ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ನೆಲ ಕಚ್ಚಿದ ಚೆಂಡು, ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಚುರುಕಿನ ಓಡಾಟ. 1 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಹೀಂ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡುಗಾರನನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಹೀಂ. 4 ಎಸೆತ ಮುಕ್ತಾಯ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 12 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಹೀಂ. ನೇರವಾಗಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಎಸೆತ ನೋಡಿ. ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 1 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 12. एक ओवर की समाप्त पर 12 अंक हो चुकी है. कोई भी विकेट की नुकसान नहीं है. बहुत ही अच्छी तरह की आयोजन इस मैदान पर एलिगेंट तरफ से
ഈ മത്സരം കഠിന കഠോരമാകും. ആരാണ് വിജയിക്കുന്നത്, ആരാണ് പരാജയിക്കുന്നത് എല്ലാം ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങളായി മാറുന്നു. ഈ മത്സരം വിജയിച്ചാൽ ഈ വിജയിച്ച ടീം ഫൈനലിൽ അനാൻ ഖത്താർ ടീമിനെ നേരിടുകയാണ്. രണ്ട് ടീമുകളിലും മികച്ച താരങ്ങളുണ്ട്. എന്തും സംഭവിക്കാം ഈ മൈതാനത്തിൽ. രണ്ടാം ഓവറിന്റെ ആദ്യത്തെ പന്ത് സാദീഖിന്റെ കയ്യിലാണ് പന്ത്. നേരിടാൻ വരുന്നത് സ്ട്രൈക്കിൽ വിശ്വയാണ്. ഒരുപാട് മത്സരത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയ ഒരു മികച്ച താരം തന്നെയാണ് വിശ്വ. എന്താണ് ഇവിടെ നേടുന്നത്, കാത്തിരിക്കാം. ഉയർത്തിയടിക്കാനുള്ള ശ്രമമുണ്ടായിരുന്നു, യാതൊരു റണ്ണ് നേടുന്നില്ല. കംപ്ലീറ്റ്ലി ബീറ്റൺ ബൈ ദ ബാറ്റ്സ്മാൻ മിസ്റ്റർ വിശ്വ. उठा के मारने के लिए कोशिश विश्वा ने, लॉन्ग ऑफ की तरफ से जा रही गेंद एक अंक ले चुकी है। इस एक अंकों के साथ 13। कोई भी विकेट की नुकसान नहीं है। गेंदबाजी की रूप पर शादी करेंगे गेंदबाजी। बल्लेबाजी की रूप पर शिव प्रसाद कटेल, एक अनुभवी खिलाड़ी है शिव प्रसाद। मिडल विकेट की तरफ से जा रहे गेंद, आसान तरीका से एक अंक जोड़ चुकी है। देखिए शिव प्रसाद कटेल ने एक ओवर 3 गेंद समाप्त हो चुकी है, 14 अंक जोड़ चुकी है। कोई भी विकेट की नुकसान नहीं है। फिर से तैयार। ओह विश्वा खतरनाक खिलाड़ी, आसान तरीका से ये एक अंक जोड़ रहे। देखिए इस एक अंकों के साथ अतिरिक्त अंक 15 पर हो चुकी है। इस मुकाबला पर कौन सी टीम जीतेंगी, कौन सी टीम हारेंगी, सभी सवाल है दर्शकों के सामने। फाइनल पर अनान कतार की सामने खेलने वाला टीम कौन सी है, सभी सवाल है मैदान पर। ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಉಡುಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿಗಳು. ಎರಡೂ ತಂಡಗಳಲ್ಲೂ ನೋಡಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆಟಗಾರರ ಸಮಾಗಮವಿದೆ. ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಆಟಗಾರರ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು. ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆವೃತ್ತಿ 6 ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಗಳು ಸಮಯ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನ ನಾವುಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 1 ಓವರ್ ಮತ್ತು 4 ಎಸೆತಗಳು ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಂಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಕಾಲ್, ಅಗಲವಾದ ಎಸ್ತ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ. ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕ 16ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಾದಿಕ ಎಸ್ತಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ. ಆಹಾ ಆಹಾ ಆಹಾ, ಇದು 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 ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಕಟೀಲ್ ಷಡ್ಕ ಷಡ್ಕ. 6 ಅಂಕಗಳು ನೋಡಿ ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. 4 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್. ಎರಡು ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 21 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. दो ओवर की समाप्त पर 21 अंकों जुड़ चुकी है. कोई भी विकेट की नुकसान नहीं है. गेंदबाजी की रूप पर नहीं आ चुकी है. गेंदबाजी की रूप पर, बल्लेबाजी की रूप पर स्ट्राइक पर रख रहा है शिवप्रसाद कटील. शिवप्रसाद कटील 8 गेंद पर 17 अंक जोड़ चुकी है टीम के लिए. बहुत खतरनाक खिलाड़ी है शिवप्रसाद कटील. इस वक्त इस समय शिवप्रसाद कटील की विकेट नुकसान हो चुकी है. देखिए क्लीन बोल्ड की रूप पर ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ.
ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ತುಂಬಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲಾ, ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಡುಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದಿಸಬೇಡ. ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಡಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಂದಿಸಬೇಡ. ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಿನ್ನಲು ಊಟವಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ತಾಯಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಬಂಧುಗಳೇ, ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಷಣಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತದನಂತರ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಎಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡಿ ಎಂಬ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ರವಾನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಯಿಸಿ ನೋಡುವುದೇ ಆದಲ್ಲಿ 21 ಅಂಕಗಳು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕಟೀಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡ. ಒಂದು ಉತ್ರಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಂಡುಗಾರಿಕಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲಾ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಬದಲಿಸಬಲ್ಲ ಆಟಗಾರ ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲಾ. ಎತ್ತಿ ಬಾರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವಿತ್ತು. ಮಿಡ್ಲ್ ವಿಕೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಸುಲಭ. ಈ ಒಂಟಿ ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ವಿಶ್ವ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ. ಆಫ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡನ್ನ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ದಂಡುಗಾರ. ಈ ಒಂದು ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಕ 23ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ದತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. 6 ಅಂಕಗಳು ಜಮಾವಣೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲಾ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ 2 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 7 ಅಂಕಗಳು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತಂಡದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತ 29ರತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ, ಮನಮೋಹಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡುಗಾರ ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲಾ. ಪಂಚಮ ಎಸೆತ ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲರವರ ಊತ್ರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲರವರ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು. ಸಾದಿಕ್ ರವರ ಭದ್ರ ಬಗಸಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಸಾದಿಕ್. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲರವರ ಊತ್ರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ. ಇರ್ಷಾದ್ ಉಡುಪಿ ತಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ.
धन्यवाद अशरफ जी। का जिम्मा संभालते हुए यहाँ पर नईम, इस बार अच्छी गेंद, बढ़िया स्ट्रोक वहां पर, बेहतरीन बेमिसाल स्ट्रोक मैं कहूंगा, लॉन्ग ऑफ की दिशा पर 4 रन। अच्छी बढ़िया स्ट्रोक यहाँ पर स्वरूप राय द्वारा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 3-3 फॉर द लॉस ऑफ 2। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पर कटिल फ्रेंड्स के बल्लेबाज द्वारा। हालांकि 2 विकेट खो चुकी है शिवा और इनफॉर्म बैट्समैन करण अंबाला के रूप पर। झटका जरूर पड़ी है कटील को, लेकिन किस तरीके से इस झटके से उभरने पर कामयाब होती है इस कटील फ्रेंड के बल्लेबाज, ये देखने वाली चीज है। बहुत अच्छी शुरुआत जरूर मिली है। एक रिलीफ तो जरूर होगा कटील फ्रेंड्स को कि विश्वा अभी भी क्रीज पर मौजूद है, जो मैच का मुखड़ा कभी भी किसी भी वक्त बदल सकते हैं। बाकी बचे 2 ओवरों में, अर्थात 12 गेंदों पर वो कितने रन जोड़ने पर कामयाब होती है ये स्वरूप राय और विश्वा की जोड़ी। बहुत ही तजुर्बेदार और एक्सपीरियंस जोड़ी मैं कहूंगा यहाँ पर, जो क्रीज पर मौजूद कटिल फ्रेंड्स की ओर से, जो बड़े शॉट्स के लिए जाने माने जाते हैं। विश्वा क्रीज पर अभी भी मौजूद। इस दूसरा क्वालिफायर मैच जो खेला जा रहा है अलसितारा उडुपी फ्रेंड्स और कटील फ्रेंड्स के बीच। कटील फ्रेंड्स पहली क्वालिफायर पे हन्नान के आगे हार का सामना किया था सुपर ओवर पर। उसके बाद एक बेहतरीन जीत हासिल कर कर यहाँ पर पहुंची है अलसितारा उडुपी फ्रेंड्स की टीम, टीम एलिगेंट के आगे। गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए जर्सी नंबर 28 यश आए हुए हैं, सामना करेंगे विश्वा। यहाँ पर एक या दो बड़ी हिट बहुत ही जरूरत विश्वा के बैट से। इस बार जिस चीज की उम्मीद की जा रही थी उसी उम्मीद को यहाँ पर बाखूबी निभाते हुए विश्वा के बल्ले से आता हुआ ये 6 रन। स्कोर बढ़ता हुआ 39 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अच्छी शुरुआत इस ओवर पर अभी तक विश्वा से। पहली गेंद पर एक छक्का छटकाया अपनी टीम और अपने निजी स्कोर के लिए। 11 गेंदें फेंकी जाने बाकी, और एक बार यश सामना करेंगे विश्वकांत। चौथी ओवर की दूसरी गेंद को लेकर यश टू विश्व। फिर से ओवर पिच फेंकी हुई गेंद, खेला उसको हवा पर। एक बेहतरीन कोशिश वहां पर फील्डर अलसितारा के, लेकिन नाकामयाब रहे। खुशकिस्मत रहे यहाँ पर विश्वा, अपना विकेट खोते खोते बच गए। बेहतरीन फील्डिंग करने वाले क्षेत्र रक्षक थे नईम, टीम उडुपी फ्रेंड्स की ओर से। इस 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41। फिर से शॉट फेंकी हुई गेंद, रक्षणात्मक तरीके से खेला उसको लॉन्ग ऑफ की दिशा पर 1 रन के लिए। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 42, 2 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही समझबूझ के साथ दोनों ही बल्लेबाज बैटिंग करते हुए यहाँ पर एक साझेदारी के साथ साथ बड़ी हिट की बहुत ही जरूरत यहाँ पर, अगर एक शानदार और अच्छा सा स्कोर खड़ा करना है उडुपी फ्रेंड्स के आगे। और एक बार विश्वा स्वरूप सामना करेंगे जिसका इस बार फुल टॉस पे की हुई गेंद खेलना चाहते थे उसको स्क्वायर लेग की दिशा पर, इस बार पूरी तरह से बीट हुए। बॉल पहुंचा विकेट कीपर की सुरक्षित दस्तानों पर, कोई रन का इजाफा नहीं। स्कोर 42 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। गुड पीस ऑफ बॉलिंग here by Yash after conceding a 6 in his first ball. Come back well with dotted deliveries and a single. Once again,
Full length delivery, lofted it in the air. There is a fielder under it. Will he take it? No. Which misses the great opportunity of sending back Swaroop right here. This might cost expensive for Udupi friends here. Was looking quite easy for the fielder here, but couldn't connect it well. Lost the control on of himself, as well as lost the eyesight on the ball. Ended up with a drop catch. And 2 more runs added to the scorecard. Score moves on to 44 now for the loss of 2 wickets. Once again, slower delivery. Read it a little early and show the way of a square leg boundary for a 6. That's what happens if you lose the easy catch. Batsman gets the confidence to hit this kind of sixes. Score moves on to 50. 50 का आंकड़ा पूरा कर चुका है यहाँ पर कटिल फ्रेंड्स की टीम. बहुत ही शानदार बैटिंग का मुजाहिरा. दोनों ही बल्लेबाज दिग्गज कहूंगा यहाँ पर. दिग्गज खिलाड़ी कटिल फ्रेंड्स की ओर से. स्वरूप राय और विश्वा की जोड़ी दर्शकों का भरपूर आनंद देते हुए. इस मैच पर जीत हासिल करने वाली टीम फाइनल पे हन्नान खतार की आगे भिड़ेगी, जो ऑलरेडी इस श्रृंखला की फाइनल पे अपना नाम रजिस्टर कर चुकी है, जो अभी तक बानाम है इस श्रृंखला में. गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए अशुर राइट आर्म ओवर विकेट होकर सामना करेंगे विश्वा. 6 गेंदें फेंकी जानी बाकी इस ओवर की. वो कितने रन जोड़ने पर कामयाब होती है ये विश्वा और स्वरूप राय की जोड़ी. जर्सी नंबर 24 अशुर. आखिरी ओवर की पहली गेंद. इस बार ऑफसाइड द ऑफ स्टंप फेंकी हुई गेंद. वाइट का इशारा यहां पर अंपायर द्वारा. इस एक अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51. 4 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी 6 गेंदें फेंकी जानी बाकी यहां पर. अच्छी गेंदबाजी की बहुत ही सख्त जरूरत यहां पर. अगर एक डिफेंड चेसेबल स्कोर खड़ा करना है अपने टीम के लिए. अशुर इसी उम्मीद के साथ गेंदबाजी करते हुए आखिरी ओवर की पहली गेंद सामना करेंगे विश्वा. इस बार फुल लेंथ फेंकी हुई गेंद. अच्छी प्रयास वहां पर बॉलर द्वारा अपने ही फॉलो थ्रू पर रोकना चाहते थे अपने पैरों की सहायता से, लेकिन नाकामयाब रहे और लॉन्ग ऑफ की दिशा पर 1 रन आसानी के साथ हासिल करते हुए यहाँ पर विश्वा. इसी के साथ विश्वा पहुंचे 14 पर और स्वरूप बैटिंग कर रहे हैं 12 रन सिर्फ 4 गेंदों का सामना करने के बाद. और एक बार अशुर दिग्गज खिलाड़ी स्वरूप राय को. आखिरी ओवर की दूसरी गेंद. फिर से फुल लेंथ डिलीवरी खेलना चाहते थे, फिर से उसको मिड विकेट और स्क्वायर लेग की जानिब. नो बॉल का इशारा. वहां पर और 1 रन का इजाफा होते हुए इसी के साथ और 1 रन मिलाकर कुल मिलाकर 2 रन इस गेंद से. इस 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. अतिरिक्त रन की रोक लगानी पड़ेगी यहां पर टीम उडुपी के लिए, क्योंकि जितने भी एक्स्ट्रा रन आएंगे वो बहुत ही महंगे साबित होंगे जब रन चेस पे उतरेंगे. तो इसी आशा के साथ अशुर और एक बार विश्वा को. वंस अगेन पहले ही नाप लिया था गेंद को, उछाल दिया उसको हवा पे, लेकिन बाउंड्री नहीं क्लियर पाया. इसी के साथ और एक आसान सा कैच था, लेकिन फ्री हिट के मुकाबले और एक जीवन दान कहूंगा मैं. बढ़िया कैच थी उस फील्डर द्वारा, लेकिन 1 ही रन हुई है इधर यहाँ पर कटिल फ्रेंड्स के लिए. इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 55, 2 विकेट की नुकसान पर. अच्छी गति परिवर्तन थी यहाँ पर फ्री हिट पर अशुर द्वारा, जिसको पहले ही नाप लिया था, लेकिन उस तरीके से टाइमिंग करने पर नाकामयाब यहाँ पर विश्वा, जिसके बदौलत एक आसान सा कैच दे बैठे और 1 रन हासिल करने पे कामयाबी हासिल की. 1 रन के साथ 55, 2 विकेट की नुकसान पर. और एक बार अशुर स्वरूप राय को. इस बार फिर से ऑफसाइड ऑफ स्टंप के बॉल को खेला मिड विकेट की दिशा पर. बढ़िया शॉट, लेकिन 1 ही रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ
स्कोर 56 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 3 गेंदें फेंकी जानी बाकी यहाँ पर। इन 3 गेंदों पर कम से कम 12 या 15 रन जोड़ पाती है तो एक डिफेंडेबल स्कोर मैं कहूंगा खड़ा कर सकती है यहाँ पर कटील फ्रेंड्स, क्योंकि उनके पास भी अच्छे खासे गेंदबाज है। अंकुर सिंह और करण अंबाला की जोड़ी। और एक बार अशुर विश्वा को इस बार आउटसाइड से बाहर जाती हुई गेंद वाइड चाहते थे यहाँ पर, इसी को साकारते हुए यहाँ पर अंपायर इस वाइड के साथ एक और रन का इजाफा होते हुए स्कोर पहुंचा 57 पर। अभी तक इन 3 गेंदों पर 7 रन दे चुके हैं यहाँ पर अशुर, में 2 वाइड और एक नो बॉल शामिल। हालांकि 3 गेंदों पर 7 रन बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस कहूंगा, लेकिन इस एक्स्ट्रा रन्स को रोकना पड़ेगा यहाँ पर अशुर। अगर बॉल बैट्समैन अपनी मेहनत से रन हासिल करता है तो अच्छी बात होगी बॉलिंग टीम के लिए। हालांकि एक्स्ट्रा रन जो है बहुत में दुविधा में डाल सकती है जब रन चेस पे उतरेंगे अलसितारा उडुपी की टीम। इसी के साथ अशुर विश्वा को इस बार फुल टॉस फेंकी हुई गेंद पूरी तरह से नाकामयाब, मिस टाइम हिट कहूंगा मैं यहाँ पर विश्वा द्वारा। हालांकि आरंभिक बल्लेबाज के रूप पर पहुंचे थे शिवा के साथ विश्वा, अभी भी वो हिट उनके भी बल्ले से आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा 58 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। विश्वा अपने निजी स्कोर 16 पर पहुंचे 11 गेंदों का सामना करने के बाद, जहां के स्वरूप राय 14 पर बैटिंग कर रहे हैं 6 गेंद का सामना करने के बाद। इसके साथ पांचवी गेंद आखिरी ओवर की। इन 2 गेंदों पर 2 छक्के लगेंगे तो दर्शक भी आनंद और टीम कटील भी खुश हो जाएगी। इसी के साथ वाइड और रन आउट होता हुआ आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाती हुई गेंद को वाइड का इशारा देते हुए यहाँ पर अंपायर इस एक रन के इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा 59। I request all the players to obey the decision of the umpire. Umpire decision will be final. This is the part of the playing condition which is already distributed to all the players here. So I request all the players to respect the decision of umpire. Umpire decision will be full and final. And also I request only the captain to do a discussion with the umpire. Only captain of the team is allowed to speak to the umpire. I request the team captain of Udupi friends, please come and discuss and please obey the decision of the umpire. This is a humble request from the organizing committee of a team Elegant Trophy. The umpire decision will be the final one. स्वरूप राय की रिप्लेसमेंट पर आए हैं कप्तान मिथुन शेट्टी। बहुत ही मजबूत कंधों के बल्लेबाज, बढ़िया हिट और बिग हिट के लिए जाने माने जाते हैं टीम कटील के लिए। किसी भी स्थिति पर आकर मैच के नक्शे को बदलने की काबिलियत रखने वाले बल्लेबाज मिथुन शेट्टी और विश्वा इस बार पिच पर मौजूद सामना करेंगे अशूर का। अभी भी 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी। 59 रन पर कटील फैंस की टीम, बाकी बचे 2 गेंदों पर उन कितनी रन जोड़ने पर कामयाब होती है ये विश्वा और मिथुन शेट्टी की जोड़ी। और एक बार अशूर विश्वा को शॉर्ट डिलीवरी, उछाल दिया उसको हवा पर, बेहतरीन शॉट, वाइडर लॉन्ग ऑन की दिशा पर 6 रन। बेहतरीन और बेमिसाल शॉट यहां पर विश्वा के द्वारा। इस बार इस 6 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 65 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स।
इसी के साथ टीम एलिगेंट के इनिंग्स की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी। टीम कटील फ्रेंड्स के इनिंग्स की आखिरी गेंद फेंकी जानी बाकी। अशुर सामना करेंगे विश्वा। फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप जाती हुई गेंद पूरी तरह से बीट हुए विश्वा। वाइट का इशारा और एक बार इस एक रन इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 66 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। लगातार वाइट पर वाइट, 4 वाइट और एक नो बॉल फेंकी जा चुकी है अभी तक यहाँ पर। अशुर अभी तक 16 रन्स लीक हो चुकी है इस ओवर पर 5 गेंदों पर। और एक बार अशुर विश्वा को इस बार फिर से खेला, उसको हवा पर उछाल कर खेला था लेकिन बाउंड्री तक बॉल पहुंच नहीं पाई। अच्छी फील्डिंग वहां पर सादिक द्वारा, बढ़िया थ्रो। इसके साथ और एक रन आउट होता हुआ यहाँ पर इस बार आउट होने वाले बल्लेबाज थे विश्वा। सलामी बल्लेबाज होकर क्रीज पर पहुंचे थे और आखिरी बैट्समैन होकर आउट हो रहे हैं। इसी के साथ पहली पारी की समाप्ति यहाँ पर टीम कटील फ्रेंड्स ने 68 का लक्ष्य रखा है। निगदिता 5 ओवरों पर टीम अलसितारा उडुपी के आगे। अच्छी बैटिंग का मुजाहिरा किया है विश्वा अपनी टीम कटील फ्रेंड्स की ओर से। जिन्होंने स्वरूप राय के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी की योगदान दिया था यहाँ पर अपनी टीम के लिए, जिसके बदौलत आज टीम 67 रन बनाकर 68 का एक लक्ष्य रखा है टीम उडुपी फ्रेंड्स के आगे। एक बड़ी चुनौती यहाँ पर अलसितारा उडुपी के आगे 68 रन हासिल करना, जो स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ कटील फ्रेंड्स के आगे थोड़ी मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। अगर पहली 2 ओवरों पे अगर बड़ी हिट मार कर बॉलर को प्रेशर पे ले आते हैं तो मैच को अपने आसानी से अपने तरफ ले जा सकती है टीम अलसितारा। इसी तरीके से अगर अर्ली विकेट जो है इस मैच पर काबू पाने पर सफलता लेकर कर दे सकती है यहाँ पर टीम कटील फ्रेंड्स के लिए। इस उम्मीद के साथ पिच पर उतरते हुए टीम कटील फ्रेंड्स के क्षेत्ररक्षक, I request all the fielders of Katil friends to arrange the fielding positions as quickly as possible. Also, I request both the opening batsmen of Alsitara Udupi to get inside the crease and get ready to face the ball. There's a humble request from the organizing committee of Elegant Trophy. I request all the fielders to get ready for the fielding, as well as both the opening batsmen of Alsitara Udupi enter the ground as quickly as possible. I request fielders of Katil friends not to on the pitch. The pitch is only reserved for the match here. Both the opening batsmen are entering the ground here. Sadiq and
दोनों ही सलामी बल्लेबाज पिच पर आते हुए यश और सादिक की जोड़ी बहुत ही एक्सपीरियंस और तजुर्बेदार बल्लेबाजों में से माने जाते हैं उडुपी फ्रेंड्स की ओर से। यश और सादिक सादिक जो कि छोटे कद के खिलाड़ी जरूर है लेकिन बड़े हिट के लिए जाने जाते हैं अपनी टीम के लिए, जो कि लीग मैचेस पे बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है अपनी टीम के लिए बैट के मुखांतर। इस उम्मीद के साथ पहली ओवर का जिम्मा संभालते हुए टीम के बेहतरीन गेंदबाज अंकुर सिंह पहला ओवर का जिम्मा संभालते हुए, बहुत ही ज्यादा उम्मीद उनके ऊपर कप्तान मिथुन शेट्टी को, जो कि बेहतरीन टेनिस बॉल के गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। अंकुर सिंह लीग मैचेस में बहुत ही अच्छा योगदान दिया था अपनी टीम के जीत हासिल करने पर। इसी को यहाँ पर फिर से उम्मीद करते हुए कटील की कप्तान दूसरी इनिंग्स की पहली गेंद खेलना चाहते थे, उसको कवर्स की दिशा पर कोई रन का इजाफा नहीं, पूरी तरह से बीट हुए यहाँ पर सादिक, छोटे कद के खिलाड़ी और ऊंचे कद के गेंदबाज यहाँ पर अपना अपना सामना करते हुए। अंकुर सिंह और सादिक, पहली ओवर की दूसरी गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट होकर, इस बार अच्छी गेंद धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद पूरी तरह से नाकामयाब होते हुए गेंद सीधा विकेट कीपर हमदान के सुरक्षित ग्लाव पर टकराती हुई, कोई रन का इजाफा नहीं। और एक बार अंकुर अपनी गेंद की रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। इस बार अच्छी गेंद कनेक्ट जरूर हुई थी लेकिन सही दिशा पे नहीं हुई, फिर भी एक रन हासिल करते हुए गेंद पहुंची थी मिड विकेट की दिशा पर। अच्छी फील्डिंग वहां पर शिवा द्वारा। इस एक रन के साथ अपना खाता खोला यहाँ पर सादिक, और टीम उडुपी फ्रेंड्स ने भी अपना खाता खोला इस एक रन के साथ। और एक बार अंकुर सामना करेंगे यश। अभी तक बहुत ही अच्छी कसी हुई गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है यहाँ पर अंकुर सिंह अपनी टीम के लिए। इसी तरह का गेंदबाजी की उम्मीद की जाएगी अगली गेंदों पर भी। क्या उस उम्मीद को किस तरीके से साकारते हैं यहाँ पर अंकुर सिंह, ये देखने वाली चीज है। इसके साथ इसी उम्मीद के साथ और एक बार अंकुर सामना करेंगे यश। फिर से फुल लेंथ डिलीवरी थी, खेला उसको पॉइंट की दिशा पर और अच्छी फील्डिंग वहां पर कटील फ्रेंड्स के फील्डर द्वारा, एक रन आसानी के साथ हासिल करते हुए एक एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन बिना कोई विकेट की नुकसान के। अच्छी समझबूझ के साथ दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर बैटिंग करते हुए, हालांकि लक्ष्य बड़ा जरूर है लेकिन अगर समझबूझ के साथ चतुराई के साथ खेलेंगे तो कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं साबित होगी इस ग्राउंड पर। और एक बार सादिक सामना करेंगे अंकुर का। इस बार ओवर पिच डिलीवरी खेल दिया उसको मिड विकेट की दिशा पर। शिवा वहां पर मौजूद, मजबूत कंधों के फील्डर शिवा जब तक गेंद को पकड़कर फेंकते विकेट कीपर की ओर 2 रन चतुराई के साथ हासिल कर चुके थे यहाँ पर बल्लेबाज। अच्छी कसी हुई गेंदबाजी दिखाई दी अभी तक अंकुर सिंह से, कोई भी बाउंड्री या छक्के की प्रदर्शन नहीं हुआ यहाँ पर। इस बार फुल लेंथ डिलीवरी फिर से खेला उसको वाइडिश
कवर्स की दिशा पर एक रन, इस एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ 5 रन बना चुकी है यहाँ पर उडुपी फ्रेंड्स की टीम, बिना कोई विकेट के नुकसान के। अच्छी शुरुआत जरूर है, लेकिन बड़ी शॉट यहाँ पर आना बहुत ही सख्त जरूरत, जो कि लक्ष्य जो रखा है वो उतना छोटा तो नहीं है जो एक या दुक्के से पूरे कर सकते हैं। बाकी बचे 24 गेंदों पर 63 रन की जरूरत, ಅರ್ಥಾತ್ 24 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 63 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಲು ಅಲ್ ಸಿತಾರಾ ಉಡುಪಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ದಾಂಡಿಗತನಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ ಸಾದಿಕ್ ಹಾಗೂ ಯಶ್ ಜೋಡಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಶೈಲಿಯ ಕರಾರುವಕ ಎಸೆತಗಾರ ಕರಣ್ ಅಂಬಾಲಾ. The tall man was brought into the attack here. The jersey number 9 Karan Ambala to Sadiq. First ball played towards the point region this time. Chance of a catch. And it is a comfortable catch at the end. With this catch, Sadiq departs. Udupi friends lost their first wicket. Archers did the catch here there. Good piece of work there. They should ensure that they will not miss any catches or not miss any fielding opportunities against the team of Udupi friends. The new batsman in is Nazir Nachu. One more destructive batsman of Udupi friends joining Yash inside the crease here. पहली गेंद पर सफलता हासिल करते हुए यहाँ पर करण अंबाला. जिस तरीके की गेंदबाजी की उम्मीद कप्तान करण अंबाला पे रखते हैं, उसी को बाखूबी निभाते हुए अच्छी शुरुआत यहाँ पर करण अंबाला द्वारा पहली गेंद पर एक बेहतरीन विकेट छिटकाया मैं कहूंगा, जो कि सादिक के रूप पर अच्छी कैच वहां पर पॉइंट की दिशा पर अरशद द्वारा. इसी के साथ पहला विकेट खोया है यहाँ पर उडुपी फ्रेंड्स की टीम. और एक बार करण अंबाला लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नजीर नज्जू को. राइट आर्म राउंड द विकेट होकर इस बार छोटी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, वाइट का इशारा यहाँ पर. एक अतिरिक्त रन की इजाफा होते हुए टीम के लिए. बहुत अच्छी कसी हुई गेंदबाजी के लिए जाने माने जाते हैं करण अंबाला. अभी तक बहुत ही अच्छा योगदान दिया है गेंदबाजी और बैटिंग पर इस टूर्नामेंट पर. और एक बार अच्छी गेंद खेला चाहते थे उसको फाइन लेग और स्क्वायर लेग की जानिब. कोई इजाफा नहीं, पूरी तरह से बीट हुए और एक डॉटेड डिलीवरी ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिया है अभी तक यहाँ पर करण अंबाला ने. और एक बार करण टू नजीर, फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप, पिच टप्पा खाने के बाद उछलते हुई बाहर की तरफ गई. वाइट का इशारा यहाँ पर और एक अतिरिक्त रन का इजाफा होते हुए टीम उडुपी फ्रेंड्स के लिए बहुत ही धीरे धीरे से लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट की नुकसान पर. अपने बाजुओं को थोड़ा खोलना पड़ेगा यहाँ पर उडुपी फ्रेंड्स के बल्लेबाजों को. बाउंड्री और सिक्सर की खोज पे निकलना पड़ेगा, तभी इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं. इसी के साथ चालाकी से गति परिवर्तन किया यहाँ पर करण, जिसके बदौलत पूरी तरह से बीट हुए यहाँ पर बल्लेबाज. और लेग बाय के रूप पर 1 रन हासिल किया टीम उडुपी फ्रेंड्स. इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 विकेट की नुकसान पर. बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी कहूंगा मैं यहाँ पर करण अंबाला द्वारा. ये लंबे खत के गेंदबाज. और एक बार यश को फिर से धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, खेला है उसको हवा पर. उतना आसान नहीं होगा यहाँ पर नई गेंद को बाउंड्री के बाहर करना. और एक आसान सा कैच दे बैठे अंकुर सिंह को.
इसी के साथ दूसरा विकेट खोकर यश वापस पेविलियन जाते हुए। उनके स्थान पर अजहर पिच पर आकर नजीर से जुड़ते हुए। बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियां यहाँ पर अजहर के कंधों पर। ना ही एक साझेदारी का बनाना है इस नजीर के साथ, हालांकि एक बड़ी शॉट मारकर टीम को जीत के करीब लेके जाना भी उनका यहाँ पर लक्ष्य रहेगा। इसी उम्मीद के साथ क्रीज पर मौजूद अजहर सामना करेंगे करण का। अभी तक बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहिरा किया है यहाँ पर करण अंबाला। पहली गेंद पर एक विकेट चिटकाई थी और पिछली गेंद पर और एक विकेट चिटका कर ये साबित कर दिया ये बेहतरीन गेंदबाजों में से एक है। इस बार अच्छी गेंद, फिर से धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद, इस बार खेला उसको हवा पर, फील्डर वहां पर मौजूद, लेकिन एक आसान सा कैच खो बैठा, आसान सा एक चांस खो बैठा अरशद। इस बार एक अच्छा मौका था वहां पर और एक विकेट दिलवाने का अपनी टीम के बॉलर करण अंबाला को। जिसके बदौलत एक रन का इजाफा होते हुए टीम के लिए। इसी के साथ टोटल स्कोर बढ़ता हुआ 9। और एक बार करण राइट आर्म राउंड द विकेट होकर नजीर को इस बार क्लीन बाउल्ड होकर वापस होते हुए यहाँ पर लगातार विकेटों की शिकार करते हुए यहाँ पर करण अंबाला टीम कटील की ओर से 3 विकेट चटकाई है इस ओवर पर, और एक चौथा विकेट होते होते बच गया था इसी ओवर पर, जो कि एक आसान सा कैच छोड़ दिया था वहां पर अरशद। बेहतरीन गेंदबाजी अंकुर सिंह और करण अंबाला की जोड़ी से एक लगभग बांध के रख दिया है सभी बल्लेबाजों को, जिसके बदौलत स्कोर पार्ट पर स्कोर बनाने पर नाकामयाब। यहाँ पर स्कोर है 9, 3 विकेट के नुकसान पर। पारी हल्की सी लड़खड़ाती हुई यहाँ पर उडुपी फ्रेंड्स की समझबूझ के साथ इस मैच पर वापसी जरूर हासिल कर सकती है उडुपी फ्रेंड्स की टीम। अगर एक साझेदारी के साथ साथ अगर बड़ी हिट मारने पर कामयाब होती है तो इस मैच पर पूरी तरीके से वापसी हासिल कर सकती है उडुपी फ्रेंड्स की टीम। इसी खोज के साथ दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए अंकुर brought back into the attack. One of the finest bowler of tennis ball has brought back into the attack. Lots of responsibility again on his shoulder. The captain has shown the confidence on this bowler. बाकी बचे 18 गेंदों पर 59 लगभग 20 रन की औसत से प्रति ओवर रन बनाना पड़ेगा यहाँ पर टीम उडुपी फ्रेंड्स को। इस बार फुलर लेंथ हल्की हाथों से फेंकी हुई गेंद, खेला उसको हवा पर और एक कैच होने का मौका खोया है इस बार शिवा। I request Imran Koteshwar from Hannan, Qatar, report to the mic point. Your teammate Sahil is waiting for you here. Imran Koteshwar, your teammates are looking for you here. Please report to the mic point. Imran Koteshwar. Once again, Ankur Singh. बॉल सौंपी गई है उनके हाथ पर। और एक बार अंकुर तीसरी ओवर की दूसरी गेंद को लेकर। सामना करेंगे नवाज। इस बार रिवर्स स्वीप के
रूप पर 6 रन आता हुआ, बढ़िया शॉट. Definitely this will release some kind of pressure from the batsman here. This is the kind of batting definitely the team will be looking for from the bat of their batsmen. अच्छी शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी को बाउंड्री का रास्ता दिखाते हुए यहाँ पर बल्लेबाज. और एक बार अंकुर अपनी ओवर की तीसरी गेंद को लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट होकर फिर से खेलना चाहते थे उसको. फाइनल की जानिब कोई कनेक्शन नहीं हुई बैट और बॉल के बीच. डॉटेड डिलीवरी ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर. कोई जरूरत नहीं थी बड़ी शॉट की. यहाँ पर पिछली गेंद पर एक छक्का आ चुका था. अगर एक सिंगल रन कर स्ट्राइक को रोटेट कर देते तो भी काफी था अपनी टीम के लिए. और एक बार अंकुर फिर से यॉर्कर टाइप डिलीवरी थी, उसको हल्के हाथों से खेलकर रन की कोशिश पे निकल पड़े थे बल्लेबाज, लेकिन उसको नकारते हुए नॉन स्ट्राइकर की बैट्समैन. कोई रन का इजाफा नहीं. डॉटेड डिलीवरी ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर. और 2 गेंदें फेंकी जानी बाकी यहां पर अंकुर सिंह द्वारा. स्ट्राइकर एंड पर नवाज सामना करेंगे अंकुर का. इस बार फिर से धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद कंप्लीटली मिस कर दिया है यहां पर बल्लेबाज. कोई रन का इजाफा नहीं. और एक डॉटेड डिलीवरी ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर. लगातार डॉटेड डिलीवरी फेंकने में कामयाबी हासिल करते हुए यहां पर अंकुर सिंह अपनी टीम कटिल फ्रेंड्स की ओर से जिस तरीके की गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही थी यहां पर उसको बाखूबी निभाते हुए अंकुर सिंह अपनी टीम के लिए. और एक बार अंकुर सिंह अपनी ओवर की आखिरी गेंद फिर से वही शॉट दोहराया, लेकिन रिजल्ट वही. गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों पर. कोई रन का इजाफा नहीं. इसी के साथ तीसरी ओवर की समाप्ति. बढ़िया ओवर यहां पर मैं कहूंगा अंकुर सिंह द्वारा. तीसरी ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 16, 3 विकेट की नुकसान पर. बाकी बचे 12 गेंद पर 52 रन की जरूरत. अर्थात 12 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 52 ರನ್ನಿನ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ ಸಿತಾರಾ ಉಡುಪಿ ತಂಡ. ಎಸೆತಗಳು 12, ಓಟಗಳು 52. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಗುರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 12 ಎಸೆತ, 52 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಓಟಗಳು 12, ಎಸೆತಗಳು 12, ಓಟಗಳು 52. ಬಾರಿಸಿದರೆ ಫೈನಲ್ಗೆ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೊರಡು. बॉलिंग का जिम्मा संभालते हुए अरशद. इस बार अच्छी गेंद, छोटी फेंकी हुई गेंद खेला उसको फाइनल की जानिब 1 रन के लिए. इक्का दुक्का से कोई बात बनने वाली नहीं है यहाँ पर. बाकी बचे 11 गेंद पर 51 रन की जरूरत. 11 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 51 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದ್ टू नवाज. नवाज को यहां पर करना पड़ेगा बाउंड्री और सिक्सर से आवाज, तभी तो जीत के ओर टीम को ले जा सकती है. इसी उम्मीद के साथ नवाज सामना करेंगे हर्षद का. इस बार लेग साइड फेंकी हुई गेंद बैट्समैन और कीपर दोनों को बीट करते हुए वाइट का इशारा और 4 रन. इस 5 अतिरिक्त रन की इजाफा होते हुए यहां पर टीम ओडीपी फ्रेंड्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रन जरूर है, लेकिन फिर भी चौके और छक्कों की फचाट होनी चाहिए यहां पर. इसी से मैच पर वापसी हासिल कर सकती है. और एक बार हर्षद अपनी दिशा से भटकते हुए पिछली गेंद पर वाइट पर 4 रन दे बटे. और एक बार हर्षद सामना करेंगे नवाज. इस बार फिर से छोटी गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप, वाइट का इशारा. लगातार वाइट गेंद दिखाई पड़ रही है यहां पर अरशद के बाजुओं से.
जो कि पिछली मैच पर टीम के लिए अच्छा योगदान दिया था टीम हन्नान के आगे। उसी तरीके की गेंदबाजी को दोहराना पड़ेगा यहाँ पर इस मैच को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए यहाँ पर अरशद को। इस बार फुल एलन डिलीवरी दिखा दिया उसको, स्क्वायर लेग का रास्ता, 6 रन। बढ़िया शॉट, इसी तरीके के छक्के और चौके ही जो है इस टीम में वापसी हासिल करने पे कामयाब कर सकती है इन दोनों ही बल्लेबाजों को। बहुत ही मेहनत से पहुंची है ये टीम अलसितारा उडुपी इस मकाम तक। यहां से अगर एक और कदम आगे बढ़ने पर कामयाब होती है तो फाइनल पे पहुंच सकती है। इसी उम्मीद के साथ नवाज यहां पर पिच पर मौजूद, सामना करेंगे हर्षद का। बाकी बचे 10 गेंदों पर 40 रन की जरूरत, सॉरी 39 रन की जरूरत। इसी के साथ गेंद की बदलाव की सूचना अंपायर द्वारा। So 29 on board from a loss of 3 wickets here. बहुत ही अच्छी कसी हुई गेंदबाजी की सख्त जरूरत यहाँ पर अरशद। पिछले गेंद पर एक छक्का दिया था नवाज के बैट से, और एक बार फुल लेंथ डिलीवरी खेला उसको फाइनली और मिड विकेट के बीचों बीच। अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा। 1 रन से संतुष्ट, इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर पहुंचा 30 का आंकड़ा पूरा करने पर कामयाब होते हुए यहाँ पर टीम उडुपी फ्रेंड्स की बल्लेबाज। और एक बार अरशद सामना करेंगे अजहर। बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारियां यहाँ पर बल्लेबाजों के कंधों पर। इसी उम्मीद के साथ और एक बार गेंद पहुंची मिड विकेट की दिशा पर 1 रन के लिए, और अच्छी फील्डिंग वहां पर उसी फील्डर द्वारा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। फिर से इक्का दुक्का पे सेटल होते हुए दोनों ही बल्लेबाज, जिसे कोई बात तो नहीं बनेगी, प्रेशर जरूर पड़ेगा बल्लेबाजों पर। और एक बार नवाज सामना करेंगे अरशद का। इस बार रिवर्स स्वीप के द्वारा सही तरीके से कनेक्ट कर खेला उसको, स्क्वायर लेग की दिशा पर 6 रन। बेहतरीन शॉट नवाज द्वारा, बढ़िया हिट मैं कहूंगा। दूसरा चौका है इस ओवर का। बाकी बचे 7 गेंदों पर 31 रन की जरूरत। 31 रिक्वायर्ड फ्रॉम 7 डिलीवरीज, which looks difficult but definitely not a impossible task for the batsmen who are playing in this ground since the morning. They knows the each and every actions of this bowler. They played against them in mammoths of matches here. Can they show some miracle from the bat? Once again, Nawaz, who's well known for the switch hits, goes for a single. They require 30 runs from 6 deliveries. ಅರ್ಥಾತ್ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 30 ಓಟಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ. 6 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 5 ಷಟ್ಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆಗೊಳ್ಳಲು ಉಡುಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಲೆ ಕೆಳಗಾದಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಉಡುಪಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಎಸೆತಗಾರ ಸುಕೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಯಾನೆ ಸುಕಿ. The 6 ball 30 runs required here for team Udupi friends to qualify for the final. The same way, if the Katil friends restrict these 30 runs from 6 deliveries, they will qualify for
finals of Team Elegant Trophy Season 6. Nawaz is on strike. Can he show some hopes for Udupi friends? They required 5 sixes out of 6 deliveries. Can he play a role of Rinku Singh here, who has hit in the IPL for Kolkata Knight Riders? Can this Nawaz repeat that innings here against Sukesh Bhandari? First ball outside the off stump, wide is the call. Also one extra run, 2 more runs added to the scorecard. The required 28 runs now from 6 deliveries. The pressure is on both batsman and bowler here. Sukesh Bhandari is the bowler. Azhar is on strike now, who's also known for the big hits. 4 sixes and a 4 will do for Udupi. This time, shorter length delivery, lofted in the air. The captain is under it, takes it quite comfortably. The wickets are falling for Udupi friends. They lost the wicket of Azhar here at the crucial stage of the match. They still require 28 runs out of 5 deliveries. The new batsman to refill the place of Azhar is Naeem. One more star batsman of the team joining Nawaz here. They still require 28 runs from 5 deliveries. 4 sixes and a 4 will bring them the victory. The same way, if they restrict from this, the Katil friends will qualify for the finals. Sukesh Bhandari is the bowler, Naeem is the batsman. One of the short and strong batsmen of Udupi friends has reached the ground. He's on striker end to face Sukesh Bhandari. This time लेग साइड पर फेंकी हुई गेंद खेलना चाहते थे, उसको फाइन लेग की दिशा पर कनेक्ट नहीं कर पाए नाइम. डॉटेड डिलीवरी ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर. 4 गेंदों पर 28 रन की जरूरत यहां पर. बहुत ही मुश्किल होता हुआ लक्ष्य यहां पर. और एक बाहरी सिरा लेता हुआ गेंद पहुंचा. स्लिप की जानिब 1 रन का इजाफा. इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 41. बाकी बचे 3 गेंदों पर 27 रन की जरूरत. बहुत ही लगभग नामुमकिन कहूंगा. यहां पर इस बार सुकेश फिर से फुल लेंथ फेंकी हुई गेंद खेलना चाहते थे, उसको रिवर्स स्वीप के द्वारा स्क्वायर लेग की दिशा पर ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए. फिर भी 2 रन आसानी के साथ हासिल करते हुए यहां पर अच्छी फील्डिंग और एक रनआउट की कोशिश जरूर थी वहां पर विकेट कीपर द्वारा, लेकिन कोई सफलता नहीं. और एक बार सुकेश सामना करेंगे नवाज. इस बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाइट का इशारा और एक अतिरिक्त रन ऐड होता हुआ स्कोर कार्ड पर. इस 1 रन इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44 फॉर द लॉस ऑफ 4 फॉर 4. सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही बाकी रह गए इस मैच पर. सुकेश और नवाज इस बार फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप फेंकी हुई गेंद, फिर से वाइट का इशारा और एक रन का इजाफा होते हुए यहां पर टीम उडुपी फ्रेंड्स के लिए अलसितारा उडुपी, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से इस मकाम तक पहुंचकर कटिल फ्रेंड्स के मुकाबले इस मैच को खेल रही है यहां पर सेकेंड क्वालिफायर के रूप पर. और एक बार सुकेश इस बार स्विच हिट की कोशिश. अच्छी संपर्क वहां पर बल्ला और गेंद के बीच. 6 रन और एक गेंद खोता हुआ यहां पर इस टूर्नामेंट का.
और एक पुरानी गेंद पहुंची है सुकेश भंडारी के हाथ और एक बार सुकेश सामना करेंगे नवाज। इस बार फिर से धीमी रफ्तार से फेंकी हुई गेंद फिर से खेलना चाहते थे उसको स्क्वायर लेग की जानिब, लेकिन कोई संपर्क नहीं फिर से बल्ला और गेंद के बीच। इसके साथ डॉटेड डिलीवरी, इसी के साथ ही कटील फ्रेंड्स एलिगेंट ट्रॉफी की फाइनल पर पहुंच चुकी है, जहां पर वो सामना करेगी हन्नान अलायंस कतार की टीम का। बेहतरीन गेंद और बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर कटील द्वारा। अच्छा स्कोर खड़ा करने के बाद अगले बल्लेबाजों को एक तरीका से बांध कर रख दिया था और वन साइडेड गेम कहूंगा यहाँ पर। आखिरी दम तक कोई विरोध